Yes, very good afternoon, boys and girls. Very good afternoon, boys and girls. तब बड़े भाई ने बोल दिया छोटे भाई का, तो बस राम जी ने बोला लक्ष्मण जी को सिर्फ एक ही करना है, आदेश का पालन। अब बड़े भाई जो कहेंगे वो तो हम करेंगे। अब सर ने कहा पढ़ा, बड़े भाई ने कहा अगर पढ़ा हो तो पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत दिल पे लग रहा है बेटा तुम्हारे, दिल पे लगा, दिल पे लगा, दिल पे लगा, हाँ दिल पे लगा। चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। यस, सर ने दिए हुए नोट्स निकालिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। एक जरूर दे मेरे पास। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। Yes, question number 9. Mona Limited offered for public 30,000 equity shares of rupees 50 each at a premium of 60, or it should be 10. It should be 10 at a premium of rupees 10 per share, 10 per share payable as under. On application rupees 20. On allotment including premium, on allotment including premium rupees 20, and on first and final call the balance amount. Company received all the money. The issue was fully subscribed. Give general entries to record the above transaction. Please prepare the format for general entries. सब स्क्रिप्ट तैयार करके लाए आप। चलिए आ जाइए। कम टू द क्वेश्चन। यस, क्योंकि राम जी ने कहा है लक्ष्मण जी को तो सुनना है। फॉर्मेट बनाइए फटाफट, हेडिंग दीजिए। इन द बुक्स ऑफ मोना लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। उम्मीद करता हूं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सभी लोगों को आता होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट आता है ना? हाँ फिर ठीक है। यस, चलिए चलो रेडी। रेडी,
चलिए रेडी स्टडी लेट्स गो. रोलो कोस्टर राइड है, संभल के लेना. अकाउंट्स का लेक्चर मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सामान लेना, कहीं कम गए चुक गया तो ठीक है. In fact, I had myself requested sir to just allow me to take question number 9 and 10 for all of you. There being a double reason, because by tomorrow, most probably by tomorrow or day after tomorrow, by this week itself, by this Saturday itself, I'll be completing the second chapter of Sources of Finance. The next chapter we are going to begin is one of the most important chapter of secretarial practice, highest weighted chapter, that is called the issue of shares. That perfectly relates with the next two examples of question number 9 and question number 10. If you remember, 2 days before I had been talking about securities premium account. I had been talking about securities premium account, right? हमने उसके बारे में भी सारे conditions discuss किए थे. Whenever the issue value is greater than the face value, the shares are assumed to be issued at premium. When the issue value is equal to face value, the shares are assumed to be issued at par, right? When the issue value is less than face value, then it is issue at shares at discount. Point to be noted here is, there are updations in the Companies Act. The recent updation in the Companies Act 2013 states, no company is allowed to issue shares at discount. No company is allowed to issue shares at discount. Now, whatever I am trying to say are the provisions which are contended, which will be learning in the secretarial practice. Just for practical understanding of the concepts, we are trying to ensure कि दो अगले जो सम है मैं लूँ, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ताकि जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँ तो उसकी प्रैक्टिकलिटी आपको और अच्छे से समझ में आए और वो चैप्टर बहुत अच्छे से आप लोगों का प्रिपेयर हो, राइट? अब मैं सर के जितना तो अनुभव नहीं है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत अनुभव मुझे है, जैसे मैंने मेरे वक्त स्टूडेंट जब था, जब ये इश्यू ऑफ शेयर सॉल्व करते आया हूँ, कंपनी रिलेटेड अकाउंटिंग, कंपनी रिलेटेड थ्योरीज और कंपनी रिलेटेड लॉ, ये पढ़ने में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी है. सो आई हैड रिक्वेस्टेड सर यस्टरडे ओनली कि ये दो प्रॉब्लम अगर मैं लूँ तो अगर आपकी परमिशन है तो मैं लूँ. तो सर ने मुझे मौका दिया है थोड़ी सी कुछ तो भी आज कुछ तूफानी करने का, तो आज कुछ तूफानी करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? मोना लिमिटेड हैज ऑफर्ड फॉर पब्लिक 30,000 इक्विटी शेयर्स. कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं वो? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 each, of ₹50 each, issued at a premium of ₹10. मैंने कहा है प्रीमियम कितना है उसके ऊपर? प्रीमियम कितना है? 10. उसमें करेक्शन करो. प्रीमियम प्रीमियम ₹60 में जा रहा है, इसका मतलब है ओके विथ ओके. सेंटेंस का वर्डिंग क्वेश्चन के वर्डिंग में है issued at a premium of ₹60. That means the value of 60 already includes the premium account. Sorry, premium amount. So what would be the premium account? ₹10 per share. ₹10 per share would be my premium which I'll be collecting on the issue of shares. Right? Before moving on to accounting entries, there is one more thing which is given in the second last line of the question. The company has received all the money. This issue was fully subscribed. We've been talking about the various conditions of subscription of shares, right? Out of the authorized capital, the company issues shares. Out of the authorized capital, the company issues shares. What are the number of shares which are issued by the company? 30,000. What are the number of shares issued by the company? 30,000, right? When the number of shares issued is equal to number of shares subscribed, when the number of shares issued is equal to number of shares subscribed, the issue is considered to be at par, or you can say 100% subscription, full subscription. It is called as full subscription. As per the law, it is denoted as full subscription. And जितने shares company issue करते हैं उतने shares अगर subscribe किए जाते हैं, that is a condition of a full subscription, right? There is one more term which is called as over subscription. ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के जो एंट्रीज है वो थोड़े डिफिकल्ट, इसलिए मैंने ये सिंपल 100% वाले ही लिए हैं. नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर का मतलब क्या होता है? जो दिया है उससे ज्यादा. बट बहुत समझने वाली बात है. कंपनी कितने शेयर्स इश्यू कर रही है? 30,000. लेट्स से द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स. The company receives application for 40,000 shares. But does the company have 40,000 shares to issue? No. The company has only
30,000 shares to issue. The company has only 30,000 shares to issue. So are the number of shares subscribed number of shares greater than the number of shares issued? This situation where the number of subscription is greater than the number of shares issued is a condition of oversubscription. Is a condition of oversubscription. But in case of under subscription, under मतलब जो दिया है उससे कम, ओवर यानी जो दिया है उससे ज्यादा, फुल यानी जितना दिया है उतना. जब हम अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, दैट मीन जितने कंपनी शेयर्स इशू कर रही है उससे कम के अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन आते हैं, दैट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. लेट फॉर एग्जांपल कंसीडर दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड 25,000 application. The company has received subscription for 25,000 shares. But how many are the number of shares which are being issued by the company? 30,000. The company is issuing 30,000 shares. The company is issuing 30,000 shares, but application is issued for 25,000 shares. So what is this issue? Is it fully subscribed? Is it oversubscribed? Or is it undersubscribed? This issue of the shares is undersubscribed. This issue of shares is undersubscribed. Yes or no? This issue of shares is undersubscribed. Point to be noted here. Regarding the subscription, we have a separate condition in the Companies Act. What does the Companies Act 2013 state? That minimum subscription which is to be received on subscription is 90%. Minimum 90% subscription जो है किसी भी इशू के ऊपर रिसीव हो जाना चाहिए. अगर कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता, द एंटायर इशू गेट्स कैंसल्ड. द एंटायर इशू गेट्स कैंसल्ड. सब 30,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रहे हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव होना चाहिए? 27,000. अभी जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें कितने एप्लीकेशन आए हमारे पास? 25,000. हमारे पास कितने एप्लीकेशन आए? 25,000. इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन विच इज रिसीव्ड फॉर लेस देन 90%, in such a case the entire subscription gets cancelled. The Companies Act lays a specific provision regarding the subscription of shares which says there should be 90% subscription minimum received on the issue of shares. Total कितने shares हमने issue किए हैं? 30,000. What is the minimum subscription we should receive? 27,000. In this particular example I have considered 25,000. Is it below 27,000? Yes. In this particular case the entire amount which is received on the shares in the form of application money has to be refunded because the entire issue gets cancelled as it does not meet the condition of 90% of subscription. Are you getting my point? Right? तो यहाँ पर second last point जो था वो क्या कहता है? Company has received all the money. The issue was fully subscribed. Fully subscribed यानी जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए उतने कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गए. तो हमारे एग्जांपल में अभी कितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने? 30,000. And how many shares have been subscribed? 30,000. So this issue is fully subscribed. It is not oversubscribed. It is not undersubscribed. शेयर की वैल्यू कितनी है? What is the value of the shares? What is the value of shares? What is the face value of shares? मैंने बताया था कुछ दिन पहले. Yes, what is face value? The value printed on the share certificate is called as face value. The value printed on the share certificate is called as face value. What is face value of the shares? 50 rupees. Is it compulsory that the issue price and face value should be same? Is it compulsory that the issue price and face value should be same? Nowhere it is compulsory. There can be a situation where the issue value is greater than the face value. Where the issue value is greater than the face value. There can be a condition where issue value is equal to face value. Where the issue value is equal to face value. And there can also be a condition where issue value is less than the face value. We have discussed about this. Whenever the issue price is greater than the face value, the shares are to be issued at, the shares are said to be issued at premium. The shares are to be assumed to be issued at premium. Yes or no? The shares are assumed to be issued at premium. Ha ya na? But whenever the issue value and face value are same, the issue is considered at par. The issue is considered at par. But when the issue value is less than the face value, कंपनी की फेस वैल्यू हमारे एग्जांपल में 50 रुपए है, लेकिन कंपनी शेयर्स अगर 40 रुपए में इशू कर रही है, कंपनी शेयर्स अगर 40 रुपए में इशू कर रही है, तो ऐसे केस में हम फेस वैल्यू जो है उसके मुकाबले इशू वैल्यू कम है, ज्यादा है, कम है. Whenever shares are issued at a issue value which is less than the face value, then in particular scenario the issue of the shares is considered at discount. What did I say? The Companies Act 2013 states it very clearly
that no company is allowed to sell their shares at discount. Why is it so? Selling the shares at discount, don't you think it's a loss for a company? कंपनी का 50 रुपए का कैपिटल का आप शेयर इशू कर रहे हो, उसके बदले में 40 रुपए हो, 40 रुपए ले रहे हो, यानी आप कैपिटल कलेक्ट करते हो कि आप नुकसान कर रहे हो. इस वजह से ड्यू टू द लॉस विच द कंपनी इनकर्स इन द कलेक्शन ऑफ द कैपिटल, there is a specific new provision which states in the Companies Act 2013 that no company is allowed to issue the shares at discount. यानी इस मुताबिक कोई भी कंपनी आज के डेट में 50 रुपए वाले फेस वैल्यू के शेयर्स को 50 रुपए वाले शेयर्स को 40 रुपए में इशू नहीं कर सकते. कर सकते क्या भाई? नहीं कर सकते. जस्ट मिनट. हाँ, दुश्मनी ये बात सही है. हमारे बाकी टाइम लैपटॉप को कुछ नहीं होगा, अकाउंट्स का लेक्चर शुरू होते ही तुम्हारा ये हमारा लैपटॉप रुकने लग जाता है, पता नहीं क्यों. चलिए कोई बात नहीं. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द अदर पार्ट, दैट इज अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द पर्टिकुलर गिवन सम. राइट, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही माशाल्लाह है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि सर जैसे इतने एकदम अच्छा पर्टिकुलरली जैसे पर्टिकुलर करते हैं एकदम साफ सफाई से, मैंने सर एकदम अच्छे से वो एक्सेल में ही देखेगा, इसलिए मैंने एक्सेल में सारी जर्नल एंट्रीज पास करके रही है. चलिए, बिफोर मूविंग ऑन टू डिस्कसिंग द जर्नल एंट्रीज, देयर इज अ स्मॉल थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद एवरीवन. सी, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स? What is the issue price of the shares in our example? 60 rupees including premium. So what is 60 rupees? 60 rupees is my issue value. 60 rupees is my issue value. हाँ या ना? What is my face value of shares? What is face value of my shares? Share का face value है 50 rupees. So how much is the premium I am collecting? The premium I am collecting is 10 rupees per share. So whatever this excess money which we are collecting over the face value is called as premium. Yes or no? Is called as premium which we collect on issue of shares at a value where the issue value is greater than the face value. In our given example, what is the premium we are collecting on each share? Extra amount we are collecting 10 rupees. इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था. कौन से ऐसे कंपनी है जो शेयर्स को प्रीमियम पे बेच सकती है? एस्टैब्लिश्ड कंपनी हैविंग अ वेरी गुड रेपुटेशन एंड गुडविल इन द मार्केट इज ओनली कैपेबल ऑफ इशूइंग द शेयर्स एट अ इश्यू वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू. व्हिच अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी हैविंग नो रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन. डू यू थिंक ऐसी कोई नई कंपनी जो मैंने जैसे गरीब आदमी ने स्टार्ट की है और वो नया अभी तक कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, अभी स्टार्टिंग है कंपनी की, or I am issuing my shares at a value greater than face value, do you think a rational investors like all of you will be interested in buying shares of my company? But obvious no, because the company has no track record. So why would anyone buy my shares at a value greater than the face value? So this is not an idea. Normally issue value is greater than the face value only with respect to the shares where the goodwill of the company or reputation of the company is such where the company feels कि हम face value से ज़्यादा के value पे भी अगर हमारे shares को बेचे तो हमारे शेयर सब्सक्राइब हो सकते हैं. जैसे कि रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके फाइनेंशियल्स वो सब चीजें बताते हैं, उसके बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ये बताती है कि ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है. इसका परफॉर्मेंस ऐसा है कि आने वाले दिनों में ये प्रॉफिट करता जाएगा. इस कंपनी का जो कुछ भी अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो इसमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा है. अब दो भाई, एक है मुकेश अंबानी, एक है अनिल अंबानी. अनिल अंबानी का ट्रैक रिकॉर्ड तुम सभी लोगों को मालूम है, मुकेश अंबानी का ट्रैक रिकॉर्ड सब लोगों को मालूम है. नाउ अनिल अंबानी सोच रहा है दैट आई वांट टू इशू द शेयर्स ऑफ माय कंपनी एट अ इशू वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू. As a rational investor, will you be interested in buying Anil Ambani's shares at a issue value which is greater than the face value? No. But obvious no, because the company's track record of performance is not that so good. लेकिन अगर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इशूइंग शेयर्स एट इशू वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, विल यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर्स एट ग्रेटर वैल्यू? यस, you will be interested in paying the premium because that company is a reputed company and having a good goodwill and having a good financials and reputations, and their track record is proven by their profits which they are generating over the years. Yes or no? Right? तो अब अगर हम बात करें, कंपनी का इश्यू वैल्यू है 60 रुपीज, यानी वो दाम जिस दाम पे कंपनी शेयर्स बेच रही है. कंपनी जो शेयर्स को 60 रुपए में बेच रही है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज. सो व्हाट इज द प्रीमियम दे आर कलेक्टिंग? What is the premium they are collecting? 10 rupees. What is the premium they are collecting? 10 rupees. Okay. चलिए. Mona Limited offered for public 30,000 equity shares of rupees 50 each at a premium of 60 per share payable as under. On application 20
ऑन अलॉटमेंट 20 एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20। तो जब कभी भी आपके पास जो पैसा आता है कंपनी के पास, जैसे मैंने कहा था वी आर डिस्कसिंग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में ये कौन सा सोर्स है? इज इट ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल? इट इज सोर्स ऑफ ओन्ड कैपिटल। वी आर ट्राइंग टू रेज द फाइनेंस इन द फाइनेंसिंग डिसीजन बाय द इक्विटी शेयर कैपिटल, है या ना? हम इक्विटी शेयर कैपिटल जो एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है उसके द्वारा जो पैसा कंपनी में रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, है या ना? राइट। लेकिन ये जो कैपिटल कलेक्ट होता है, ये जो कैपिटल कलेक्ट होता है, ये एक साथ कलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि पहले दिन अभी कंपनी फॉर्म हुई है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, पहले दिन सारा पैसा लगेगा क्या? जैसे अभी कंपनी पूरे शेयर्स कितने इशू कर रही है? 30,000। कितने शेयर्स इशू कर रही है? 30,000। एक शेयर पे कितने कलेक्ट करने हैं? एक शेयर पे कलेक्ट कितने करने हैं? 60 रुपीज। तो इस हिसाब से कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे? 18 लाख, 18 लाख रुपीज। हाउ मच विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी? 18 lakhs। बट ऑल 18 लाख रुपीज विल नॉट बी नीडेड बाय द कंपनी ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। धीरे धीरे कंपनी जैसे बनना शुरू होगी, काम काज शुरू करेगी, वैसे वैसे धीरे धीरे कंपनी जो है अपने पैसे की जरूरत उसे महसूस होगी। तो कंपनी ने क्या सोचा? सारे के सारे 18 लाख रुपए की आज जरूरत हमें नहीं है, सारे के सारे 18 लाख रुपए की जरूरत आज हमें नहीं है। जैसे जैसे कंपनी को जरूरत होगी वैसे वैसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती है। कुछ सर्टन अमाउंट होता है विच दे रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। अभी अगर हम बाइफर्केशन देखें, ये जो 60 रुपए हमें रिसीव करना है, अगर मेरा गलत नहीं हो तो सर थोड़ा माफ करना। नॉर्मली जब ऐसा क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर्स का आता है, जस्ट सी व्हाट इज द इश्यू वैल्यू, और इश्यू वैल्यू के मुताबिक उसका बाइफर्केशन करके रखो। एप्लीकेशन मनी पे कितना पैसा आया, उसके बाद अलॉटमेंट के वक्त पैसा कितना आया, कॉल्स कितने हुए और हर कॉल पे पैसा कितना है। तो इसमें जो हम जनरल एंट्रीज में जो अमाउंट लिखते हैं उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या बोला है? 60 रुपए कैसे आया? देखो वहां पे पढ़ो। ऑन एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू रिसीव ₹20 पर शेयर। एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 20 रुपीज पर शेयर। फिर उसके बाद अलॉटमेंट में कितना आएगा? 20 रुपीज पर शेयर, राइट। और फिर उसके बाद बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आएगा? 20। यानी जो 60 रुपए कंपनी को एक शेयर को इश्यू करके मिलने वाले हैं, क्या वो कंपनी एक साथ ले रही है क्या? नहीं। एप्लीकेशन पे आपसे कितने लिए जा रहे हैं? 20 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने लिए जा रहे हैं? 20 रुपए। और फाइनल कॉल पे कितने लिए जा रहे हैं? 20 रुपए। अब यहां पर बात समझने की कोशिश करिए। कंपनी ने अगर शेयर्स इशू किए हैं और आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और एप्लीकेशन मनी पे की है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब मान लो ये इशू अभी क्या है? फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, लेकिन अगर ये फुल्ली सब्सक्राइब ना हो तो ये ओवर सब्सक्राइब होता है ना। एप्लीकेशन 30,000 से ज्यादा के आएंगे। तो अगर 40,000 एप्लीकेशन आए हैं तो क्या 30,000 शेयर से हम 40,000 का अलॉटमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। 30,000 शेयर से ही हम 30,000 लोगों का अलॉटमेंट, 30,000 शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकते हैं। यानी एक्सेस 10,000 जो एप्लीकेशन आए वो रिजेक्ट होंगे। इससे हमें लॉजिक क्या समझ में आती है? इससे हमें लॉजिक ये समझ में आती है कि जब कभी भी कोई सब्सक्राइबर या इन्वेस्टर्स शेयर एप्लीकेशन मनी भरता है कंपनी को, दैट इज नॉट कंपल्सरी कि कंपनी उसे शेयर अलॉट कर रही है। उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या फिर उसको कंपनी के शेयर्स मिले हैं, यह कंफर्मेशन तभी होगा जब अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। अभी हमारे केस में 30,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं, हमको 30,000 एप्लीकेशन आए हैं, तो इसमें कम ज्यादा का कोई सवाल पैदा नहीं। यानी जितने लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं उन सभी लोगों को अलॉटमेंट हो जाएगा। अलॉटमेंट इज सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। अगले वाले चैप्टर में जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल है। जब कभी भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, पहले इशू का प्रोसीजर होता है। शेयर इशू का प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्टेप जो पूरे इशू ऑफ शेयर्स में आता है वो है अलॉटमेंट। यानी जितने एप्लीकेशन आए हैं उन एप्लीकेशन में से सचमुच में जितने शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट करने हैं, शेयर देने हैं, उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट प्रोसीजर। और अलॉटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद यू कैन से दैट आई हैव रिसीव्ड और आई हैव बॉट द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। बहुत से लोगों के एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो आगे सर सिखाएंगे कि उनका पैसा रिफंड करती है कंपनी। जनरल इंटरेस्ट में आगे देखो कंपनी क्या करती है, उनका पैसा रिफंड करती है। जब उनके एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हुए, जब उनको शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए, तो वो कंपनी के ना कभी शेयर होल्डर बन सकते हैं ना वो कभी मेंबर बनेंगे। सिर्फ वही लोग शेयर होल्डर या मेंबर बनेंगे जिनके एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए गए हैं और जिनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर जब प्रोसीजर देखेंगे तो पहले प्रोसेस में आता है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर के बाद आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब अलॉटमेंट कंप्लीट होता है
तब जाकर आप मेंबर या शेयर होल्डर कंपनी के बनते हो। सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करने से आप कंपनी के मेंबर या शेयर होल्डर नहीं बनते। जब आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उसी के बाद आप कंपनी के मेंबर बनते हो। अभी यहां पर हमारे एग्जाम्पल में 30,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं। इन 30,000 शेयर्स पे रकम कितनी आनी है? 18 लाख। लेकिन एक शेयर की वैल्यू अगर हम कंसीडर करें, द वैल्यू और द इश्यू वैल्यू, राइट, इफ यू कंसीडर द इश्यू वैल्यू, व्हाट इज द इश्यू वैल्यू? इट इज 60 रुपीज। कंपनी ने एप्लीकेशन के वक्त कितने रुपए मंगाए इसमें? 20 रुपीज पर शेयर। What is the amount we have been called for? And at the time of application, it is 20 rupees per share. At the time of allotment, what is the amount being called? 20 rupees per share. And whatever is the balance amount, it is to be received on the first and final call, that is rupees 20. A point to be noted here is, whenever we receive premium, sir, if I am not wrong, मैं तैयारी थोड़ा पढ़े वड़े करके आया हूँ, unless otherwise specifically mentioned. What I am trying to say, please pay attention. Balveer, ध्यान दे. Unless otherwise specifically given, if the shares are issued at premium, the same are assumed to be collected at the time of allotment. What did I say? Unless otherwise specifically mentioned. क्या बोले हमने? Unless otherwise specifically mentioned, the premium to be received is always considered as a part and parcel of the amount which is to be received on allotment. कंपनी को अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है? 20 रुपीज। कंपनी को प्रीमियम कितना मिलना है? 10 रुपीज। तो ये प्रीमियम की रकम कब आएगी? एप्लीकेशन पे आएगी या अलॉटमेंट की रकम के साथ आएगी? अलॉटमेंट के रकम के साथ आएगी। अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली दिया है द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी इटसेल्फ, तो ये 20 रुपए के एप्लीकेशन मनी में एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 10 रुपीज। और बचा हुआ 10 रुपीज क्या होगा? प्रीमियम होगा। बचा हुआ 10 रुपीज क्या होगा? प्रीमियम। अगर स्पेसिफिकली दिया गया नहीं है तो जो प्रीमियम के 10 रुपए हमें रिसीव करने हैं, दे आर अज्यूम्ड टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, राइट? दे आर अज्यूम्ड टू बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के वक्त हम उस 10 रुपए को रिसीव करने वाले। वी आर गोइंग टू रिसीव दैट दिस 10 रुपीज ऑफ प्रीमियम अमाउंट ओनली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बात सही भी है ना? अजम्पशन करने का नहीं, कॉमन लॉजिक लगाओ। अब जिसकी एप्लीकेशन अपन एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसके प्रीमियम पैसे लेके क्या करेंगे? है वो जो एप्लीकेशन मनी उसको अपने को रिफंड करना है वही मनी उसको अपने को रिफंड करना है। तो नॉर्मली अलॉटमेंट के वक्त, अलॉटमेंट यानी फाइनल हो गया कि भाई पंकज सर को हमें शेयर्स अलॉट करने हैं, तो जब सर को फाइनली अपने को शेयर्स अलॉट करने हैं तब उनसे प्रीमियम लेंगे ना। अगर समझ लो सर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रही है कंपनी, तो सर से ऑलरेडी है वो एप्लीकेशन मनी 20 रुपए वापस लौटाना है, तो उनसे अलॉटमेंट पैसा मांगने का कोई सवाल पैदा होता है क्या? नहीं। प्रीमियम हम कलेक्ट किससे करेंगे? जिसे हम शेयर्स देंगे। भाई जिस एप्लीकेंट का एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसे प्रीमियम कलेक्ट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड करना है। सो सी, जब भी आप ऐसा जनरल एंट्रीज का प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो कुछ भी इश्यू वैल्यू रहेगा उसका एक ठीक तरह से बाइफर्केशन कर लो रफ में, ताकि फिर आपके जनरल एंट्रीज के अमाउंट में कहीं भी गलतियां ना हो। तो हमने क्या कंसीडर किया? व्हाट इज द इश्यू वैल्यू वी आर गोइंग टू रिसीव ऑन द शेयर्स? व्हाट इज द प्राइस एट द विच द कंपनी आर सेलिंग शेयर्स? 60 रुपीज। इसका बाइफर्केशन कैसा किया है? ऑन द application we are going to receive 20 rupees, on the allotment we are going to receive 20 rupees, and on the first and final call we are going to receive 20. So the same amount of 60 rupees is called up in 3 installment, application पे 20, allotment पे 20 और final पे 20. मैंने क्या कहा था? नोट याद रहे, unless otherwise specifically mentioned, it is always assumed the premium received on the issue of shares is part and parcel received along the allotment money. अलॉटमेंट मनी के साथ वो रिसीव किया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोना लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फर्स्ट जर्नल एंट्री, व्हेनेवर द कंपनी इश्यूज शेयर्स, कंपनी विल बी रिसीविंग एप्लीकेशन, एंड अलोंग विद द एप्लीकेशन देयर विल बी एप्लीकेशन मनी व्हिच विल बी रिसीव्ड। व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी वी आर गोइंग टू रिसीव? रुपीज 20 पर शेयर। व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी वी आर गोइंग टू रिसीव? 20 पर शेयर। हाँ या ना? And how much are the number of shares? 30,000. So what is the total amount we are going to receive? It is 6 lakhs. So what will be the general entry for same? Bank account debit. Yes, start writing. Bank account debit. Bank account debit. To share application account. What is the amount?
6 lakhs. What is the amount we are going to receive on application is 6 lakhs. What is the amount we are going to receive is 6 lakhs. Bank account debit 6 lakhs to share application account 6 lakhs. What will be writing in narration? Being application money received at the rate of 20 rupees per share on 30,000 shares. लिखो being application money received है ना, शॉर्टकट लिखने का हर जगह पे, पूरा लिखो नरेशन, नए अकाउंट की सिर्फ पोस्ट के पूरा लिखो. being application money at the rate 20 rupees per share received on 30,000 shares लिखो. या फिर इसमें एक और तरीके से लिखते हैं being application money received ब्रैकेट में लिखिए 20 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट वाला being application money received, ये डिटेल नरेशन है. being application money received on 30,000 equity shares at the rate 20 per share, at the rate 20 per share, or you can also write being application money received ब्रैकेट में लिखो 20 multiplied by 30,000 is equal to 6 lakhs. So what is the first entry we have passed? Bank account debit 6 lakh rupees. Bank account debit 6 lakh rupees to share application account. To share application account. To share application account. Now our example, is it a situation of over subscription, under subscription or full subscription? Full subscription. इसका मतलब जितने भी सब्सक्रिप्शन या जितने भी एप्लीकेशन आए सभी लोगों को अलॉटमेंट होने वाला है, सभी लोगों को अलॉटमेंट होने वाला है. यहाँ पे पैसे रिफंड का कोई चक्कर है क्या? नहीं. पैसे रिफंड का चक्कर कब पैदा होगा? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा. तो हम जितने भी शेयर्स रिसीव कर रहे हैं सभी लोगों को अलॉटमेंट कर रहे हैं, यानी जब किसी एप्लीकेंट का एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा नहीं तो पैसे रिफंड करने का कोई यहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता. तो जितना भी पैसा हमें एप्लीकेशन पे आया है, देन लेट्स ट्रांसफर इट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो व्हाट विल बी द entry for transfer of the amount on share application to share capital account? Share application account debit to share capital account. To share capital account. ₹6 lakh. What will be the narration will be writing? Being application money transferred to share capital account. We are transferring the application money which is received to share capital account. ठीक है सर? क्या क्या पढ़ेंगे? इको है, एसपी है, हाँ क्या क्या अच्छा यस बीइंग लिखिए प्लीज. बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, इज इट ओके? कितना अमाउंट है ये? 6 lakhs. नाउ नेक्स्ट, ये हो गया मेरा पहला इंस्टॉलमेंट. एप्लीकेशन मनी भी कितना रिसीव होना है मुझे? 20 रुपीज. थोड़ा भाई साहब थोड़ा पानी दो, एनी वाटर. चलिए प्लीज, चलो अभी देखो. वैल्यू ऑफ 60 रुपीज, प्लीज. वैल्यू ऑफ 60 रुपीज is received in 3 installments on application 20, on allotment 20, and on first and final call 20, right? What did I say? Unless otherwise specifically stated, the premium collected on issue of shares is assumed to be collected at the time of allotment. Is to be assumed to be collected at the time of allotment. अब यहाँ पे बात समझने जैसी है. allotment में कितना पैसा मिल रहा है हमें? 20 rupees. Out of this, what is the premium amount? So what will be the premium collected in the allotment installment of 20 rupees? It will be 10. Okay. So what will have the general entries? मैंने 2 दिन पहले बताया था आपको, अगर आपको याद है तो.
share allotment account debit, to share capital account, to securities premium account. याद आया क्या? 2 दिन पहले मैंने एसपीएम बताया था, यहां पर आया टिप्स, इसीलिए मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं. अब मुझे बताओ, अब ये कहां पे कौन सा प्रोसेस शुरू हो रहा है? अलॉटमेंट का. जो शेयर्स इश्यू किए उसे अब हमें अलॉट करना है. सो हाउ मेनी शेयर्स वी आर गोइंग टू अलॉट? वी आर गोइंग टू अलॉट एंटायर 30,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट के वो कितना पैसा लेना हमें? 20. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीस. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीस. अब इस 6 लाख में से 10 रुपए प्रति शेयर मल्टीप्लाइड बाय 30,000 is nothing but the share capital money which we are receiving, and 10 rupees excess which we are receiving, that is 3 lakh, that is 10 multiplied by 30,000 is the premium at rupees 10 which we are collecting on 30,000 shares. The money collected on premium, can it be transferred to share capital account? No. I said that day clearly. The Companies Act 2013 states, any premium which is collected on issue of shares, please boys pay attention, any premium which is collected on issue of shares has to be deposited into a separate account which is called as the securities premium account. Amount transferred separately in the securities premium account can be utilized only as per the provisions of the Companies Act. For example, as I said, that the amount deposited in securities premium account can be utilized for the issue of bonus shares, for the issue of bonus shares. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना लिखा है हमने? 6 लाख. अलॉटमेंट में पैसा कितना आना है हमें? 6 lakhs. टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 rupees per share multiplied by 30,000 share is 3 lakhs. And what is the premium we are receiving? Rupees 10 multiplied by 30,000 shares. Now this premium is to be deposited into a separate account which is called as securities premium account. So to securities premium account 3 lakhs. To securities premium account 3 lakhs. नरेशन लिखिए. being call of rupees 20 per share, being call of rupees 20 per share made on allotment. यहां पे क्या कर रहे हैं हम? अलॉटमेंट कर रहे हैं. बीइंग कॉल ऑफ रुपीज 20 पर शेयर मेड ऑन अलॉटमेंट. अब अलॉटमेंट का कॉल करना है. अब कॉल करने के बाद हमें क्या आएगा? पैसे आएंगे. विल रिसीव द मनी. यहां पे कोई फॉरफीचर वगैरह नहीं है. जितना भी कॉल कर रहे हैं, जितना भी अलॉटमेंट के वक्त पैसा मांग रहे हैं, सबके सब पैसा दिया जा रहा है. यहाँ फॉरफीचर विरफीचर कुछ भी नहीं है. जितना पैसा मंगवा रही है कंपनी, उतना को इतना पैसा मंगवानी कंपनी को मिल रहा है. कंपनी को मिल रहा है. राइट. So what will be the general entry for receipt of the money? Bank account debit. Bank account debit 6 lakh. To share allotment account 6 lakhs. To share allotment account 6 lakhs. मैं आके बुक चेक करूंगा. हाँ. To share allotment account, मैं वो strict account का सर. To share allotment account 6 lakhs. Okay, being money received on allotment of shares. Being money received on allotment of shares. Yes or no? यहां पे सिर्फ ध्यान रखने वाली एंट्री कौन सी है? प्रीमियम वाली एंट्री. और प्रीमियम कब रिसीव किया जाता है? Assumed to be received at the time of allotment amount. Next, first and final call account debit. अब बचे कितने? देखो 60 रुपए का शेयर है. ये क्लासिफिकेशन हमेशा कर लिया करो इश्यू वैल्यू का, ताकि फिर जनरल एंट्रीज में आप गड़बड़ ना करो. 2 चीजों का रफ वर्क हमें इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर जनरल एंट्री छोड़ाते वक्त करनी चाहिए. एक, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ है तो कितने हैं वो शेयर्स, कितने इश्यू हुए, उसमें सब्सक्रिप्शन क्या है. और दूसरा, जो इश्यू वैल्यू है उसका बाइफर्केशन इंस्टॉलमेंट में कैसा है. इसके हिसाब से आप जनरल एंट्रीज में कहीं चूक रहे हो या नहीं चूक रहे हो आपको समझ में आएगा. यस. अब कंपनी एप्लीकेशन पे 20 रुपए रिसीव कर रही है, अलॉटमेंट पे 20 रुपए रिसीव कर रही है, अलॉटमेंट पे 20 रुपए रिसीव कर रही है, तब कंपनी को बचा कितना पैसा है? 20 रुपया. और 20 रुपया शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर से लेना है. राइट. सो व्हाट वुड बी द फाइनल कॉल? द फाइनल कॉल विल बी ऑफ 20 rupees per share on 30,000 share. It will be again be
6 lakh. So first and final call account debit 6 lakh rupees. First and final call. First and final call account debit 6 lakh rupees. To share capital account 6 lakh. To share capital account. नरेशन में क्या लिखेंगे हम? Being, ओ आराम से, ओ लिखो लिखो, सॉरी हाँ, मैं थ्योरी वाला, मेरे को थोड़ी मालूम इतने फटाफट नहीं होता, चलो लिखो लिखो. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6 lakhs. To share capital account 6 lakhs. To share capital account 6 lakhs. हो गया. नरेशन में क्या लिखेंगे? Being amount due on first and final call called for at the rate of rupees 20 per share called for. फर्स्ट और फाइनल कॉल को हमने कॉल किया है. Being amount due of rupees 20 per share on the first and final call is called for, right? ये हो गया फर्स्ट और फाइनल कॉल. अब being amount due on first and final call called for. हो गया. अकाउंट के सर बहुत स्ट्रिक्ट है. चलो फर्स्ट और फाइनल कॉल किया है. अभी इस फर्स्ट और फाइनल कॉल किया अमाउंट हमें रिसीव करना है. प्लीज वी हैव टू रिसीव द अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. सो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा, यहां पे भी शेयर आना चाहिए. सॉरी, 5वें नंबर में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. थोड़ा सा गाबड़े छाबड़ हो गया हमारा. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 5वें नंबर पे, यहां पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट 6 lakhs to share first and final call account 6 lakhs. Is it okay? Is it okay? Being amount received on first and final call. Being amount received on first and final call. Is it okay? Is it okay? समझो क्या? पढ़ा दो क्या अकाउंट्स ठीक ठीक? नहीं नहीं नहीं. अच्छा नहीं क्या? नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क. कल बैठ रहे नीचे. कल जो भी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व नहीं करेगा उसको मैं क्लास में बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा. हाँ, अरे एक सेकंड रुक जाओ प्लीज प्लीज. ए बैठ नीचे, बैठ नीचे, बैठ बैठ नीचे, बैठ नीचे, नीचे बैठ. देखो क्वेश्चन नंबर 10. देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मोहिनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 each at a discount of ₹1 per share payable, 5 on application, 3 on allotment, on first and final call and balance amount. All the shares were applied and allotted. Money due on calls was received. Past general entries in the books of Mohini. Please. अब यहां पे डिस्काउंट है. डिस्काउंट के अंदर बाकी सब जर्नल एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ 3 नंबर की जर्नल एंट्री हमारी चेंज होगी. तो यहां पर क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सिर्फ ये एक जनरल एंट्री में चेंज है, 3 नंबर के जनरल एंट्री में चेंज है.
बाकी इस वाले प्रॉब्लम के भी 6 जनरल एंटिटीज रहेंगी, इसी तरह से रहेगा. सो प्लीज कल आते वक्त ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आओ. अभी तुम्हारा होमवर्क है, मेरे को बहुत होमवर्क दिया, अब तुम भी होमवर्क करके आओ. तो बैठ नीचे बैठ रहे. Companies Act 2013 states that no company is allowed to issue shares on discount, but for accounting purpose we need to see the journal entries for issue of shares at discount. Issue of shares at discount when the issue value is less than the face value. Is it okay? Is it okay? Thank you so much.